नमस्कार मु मोनिका आपण मानको स्वागत करुछि। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव शिक्षा बिना सेमिति भविष्यत गठन मध्य असंभव अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होइछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो तेणु पिलांकर भविष्य गठनर से गाड़ीर सारथी जी ओडिशा साजिछि। लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पाठ पढ़िबार सुजोग देछि। तेबे आमर ए प्रयास एमिति नीतिदिन जारी रहिबो। प्रत्येक दिन दक्ष शिक्षक माने पिलांकर क्लास नेबे तांकर प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि 10म श्रेणीर इंग्राजी आ आपणकर क्लास नेबे नब किशोर साहू। Hello my dear children from all over Odisha. Today I am just re-energizing myself to take another class that has already been given to or provided to me by the OSSTA along with this sponsored Zee Odisha. I simply don't want to waste your time. So today I am just beginning my lessons today right from the very important language skill that is called phrasal verb, my children. So what is a phrasal verb? So now you just see what I have just written on the blackboard. So on this white blackboard I have just written as a phrasal verb. Remember my dear children, phrasal verb. There is a very interesting and very demanding and also very attractive language skills throughout all language systems in our English course. Remember, what is phrasal verb? You already know about your verb, my children. What is the verb? Generally a verb denotes the action. Generally, a verb denotes the action done by the subject. And also, a verb denotes some action done to the subject. But still, there are certain types of the verb. Verb generally speaks about the subject. That's true. But in certain cases, verb not only refers to action, but in certain cases, your verb also refers to possession or the state. But whatever it may be, it may refer to action, it may refer to possession, or it may refer to state. तार अर्थ होची गोटे क्रियापद कार्य को सूचित करि पारे, possession बोले धारण को सूचित करि पारे, state बोले अवस्था को सूचित करि पारे. But one thing is clear, my children, a verb is always related to the subject. Verb सबु बोले subject रा, subject सबु बोले verb. Verb ra. तामरे कर्ता सबु बोले क्रिया रा, क्रिया सबु बोले कर्ता रा. So the relationship between a verb and a subject is just like the relationship between fish and water. As a fish can't survive or can't live without water, so it is simply meaningless if you think of a verb without a subject, if you think of a subject without a verb. So verb is already there. You know, dance, speak, tell, lakhs and lakhs of verbs are there in English. English re pila lakhe lakhe verb ache. Khaiba, piba, jiba, hasiba, naiba, dekhiba, udiba. These are the verbs denoting action. Egudi ko ame kriya pada kahu jota ki karya ko bujhaye. Kintu apart from actions, karya chhada, certain verbs also refer to possession. Ketaka verb pila possession ko bhi bujhaye. Kim the father has a new bike. Here has is a verb denoting possession. Jota ki dharan ko bujhauchi. If I say the children are hungry, are is the also verb. This is the be verb, denoting the state of the children, because the children are in hunger. That is why they are hungry. Remember. So verb is already there. But remember, what is a phrasal verb? If you have books, if you have textbooks, that means class 10th textbooks with you, my dear children, you can open your book at page number 60. पिला माने 60 नंबर पेज टाकू तुमे बाहर कर तम पाखरे जदी बही अछि एंड जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दका फ्रेजल वर्ब टा पिला बोल्ड टाइप रे लिखा जाई छी बोल्ड टाइप रो अर्थ होची कला कला अक्षर रे लिखा जाई छी फ्रेजल वर्ब सो व्हाट इज फ्रेजल वर्ब रिमेंबर सेति पय मु तुम गोटे कहू छी देखो क्वेश्चन नंबर अछि सेट विथ एग्जांपल एंड एग्जांपल हैज बीन गिवन व्हाट टाइम डिड यू गेट बैक लास्ट नाइट व्हाट टाइम डिड यू गेट बैक What time did you get back last night? Last night. What are the verbs? My dear children, you first notice the verbs. The verbs are did get back. Did get back, these are the verbs. Remember, in these verbs, you just notice get back. Your did is the auxiliary verb. Did is the helping verb. The Odia term of auxiliary verb is called sahajyakari kriya. But in English, in Odia, we don't have any auxiliary verb. Pila mane Odia ra amar konsi sahajyakari kriya nahi. Whatever the verbs that are in Odia, they are always the main verb or the full verb or ordinary verb or lexical verbs. Odia re jo kriya pad gudi ka achi se gudi ko koha jaye mukhya kriya.
कारण मुख्य क्रिया एइथपाई बिकॉज दे हैव देयर इंडिपेंडेंट यूज से मानकर निजस्व अर्थ रही बट हियर डीड इज द ऑक्सिलरी वर्ब और अदरवाइज नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब जहाँ को तुम्हें कहो साहाय्यकारी क्रिया सो हियर गेट बैक definitely this is the main verb but remember my children here get is the main verb not back did is the auxiliary verb but get is the main verb but along with get we have another word that is called back after the verb get we have another word that is the back what is this you will be surprised to know simply what do you mean by back or why is back used here एटी get main verb पर पिला back कहीं यूज करा जाइए here back is not the opposite of a front एटी पिला back front बा before कौन से अर्थ नुए remember here back is my a participle here back is a participle and this participle is called adverb participle adverb you always know adverb is the word that modifies a verb in certain cases an adjective or adverb पिला माने क्रिया विशेषण जानि छ जे क्रियापद को विशेषित करे बा केतक क्षेत्र रे adjective बोले विशेषण पद को आउ केतक क्षेत्र रे another adverb को मध्य विशेषित करे बा अधिक संपर्क करे ता विषय कहे so hello adverb participle here back is the adverb participle remember my children adverb participle get is the main verb back is the adverb participle now a complete meaning comes from get back पिला माने get back रे देखो जेतले मिसई दोछु get main verb सहित back participle जेतले मिसुची we get a special meaning we get a concrete meaning we get an idiomatic meaning आमे गोटे संपूर्ण अर्थ प्रकाश करछि here get is it does not refer to any common meaning साधारणतः पिला get रो अर्थ जानि छ पाइबा but when get is combined with back that means the adverb participle that means when you use get verb with back as an adverb participle this is called phrasal verb get verb सहित back जेतले participle पिला यूज करू छ that is called phrasal verb याको तुम phrasal verb के कहू छ BACK phrasal verb that is called phrasal verb get back is called the phrasal verb so what do you mean by get back means return remember my children here get back means return that means when did your father get back when did your father return तुम बापा केतेबेले फेरिले so that is called get back so here get back means return फेरिले remember get back means return so get back is the phrasal verb remember my children get back here is the phrasal verb so how did you get your phrasal verb एबे पिला माने मते कुह phrasal verb केमिति तुमे पाइलो so we get a phrasal verb when we combined a verb with either a preposition or a participle preposition or participle so when you combine a verb or when you use a preposition or a participle with a simple verb we get a phrasal verb understand my dear children जेतेबेले verb सहित preposition बा participle मिसी जाए then that particular verb becomes a phrasal verb and phrasal verb has always a unique meaning phrasal verb निजस्व गोटी हला कि संपूर्ण अर्थ रही सो get is the verb back is a participle the total verb is called the phrasal verb and get back means return get back रो अर्थ होची return बोले फेरी आसीबा so when you return from some place you generally get back if I say when did the children get back from school that means when did the children return from school so the phrasal verb of return is called get back get is a verb then back is a participle which participle it is called an adverb participle so verb plus adverb participle is equal to phrasal verb now my dear children you will be very surprised or you will be very curious to know तुमे पिला जान के खुशी हबो then why back is not a preposition तले back गोटे preposition काहे कि नुए then what is the difference between preposition and participle hello what is the difference between preposition and participle preposition एवं participle भितर पिला तले difference करूची remember when there is an object after the verb then your preposition is used remember if there is an object after the verb the word is a preposition if there is no object after the verb it is an adverb participle verb pare pila jodi object rahibo bole karma rahibo then the word is a preposition
If there is no object, जदि कौन से कर्म नहीं, definitely the word that is used in the phrasal verb or after the main verb, it is a participle. That means for adverb participle. तो तुम्हारे पिला माने question number 1 रे थिला example, what time did you get back last night? एटी get back टा गोटे phrasal verb because get is a verb and back is the adverb participle. Back टा पिला तुम्हें भाबिबो काहे की preposition नुए because we don't have object after it. ए परे हमर कोन से object नाही. Last night is the time adverb. Last night is the time adverb, so there is no object after the verb. सेइतिपई पिला बैकटा हेउची गोटिए पार्टिसिल किंतु प्रीपोजिशन जतले आसीबो देन यू हैव टू कंसीडर इट एज ए प्रीपोजिशन. रिमेंबर प्रीपोजिशन पिला केतेबेले आसीबो मु तुमको गोटे एग्जांपल कहि दउस देखो. इफ आई से द पीपल ऑफ आसाम पुट on traditional attire. The people of Assam put on traditional attires. Remember, what do you mean by traditional attires? Traditional means ancient, prachinna. Okay, but old. Attires means clothes or garments, पोशाक. तामाने आसाम रो लोक माने पारंपरिक पोशाक परिधान करंती बा परिधान करिथांती. पिला परिधान करिबा बा पिंधिबा को इंग्रजी रे कुआ जाय put on. So this put on is a phrasal verb. Okay, this is a phrasal verb or PHRV. Here put is a verb and on is a preposition. But here on is not a participle. Why? I have already told you. पिला मु तमु प्राय already कहि दउची. If there is an object, then it is a preposition. If there is no object, then it is definitely an adverb participle. जदि प्रीपोजिशन रहिबा सेतिक बेले जदि वाक्य रे ऑब्जेक्ट थिबो केमिति तुमे पिला ऑब्जेक्ट जानिबो. एठी गोटे प्रश्न पचार दबो पुट ऑन उपरे. व्हाट डू द पीपल ऑफ आसाम पुट ऑन? पुट ऑन रो अर्थ होची वेयर, पिंधंती, प्रेजेंट सिंपल. सो व्हाट डू द पीपल ऑफ आसाम पुट ऑन? आसाम रो लोक माने कोन पिंधंती? सो आंसर इज ट्रेडिशनल अटायर्स, पारंपरिक पोशाक. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, कर्म. So as we have the object, so on is a preposition. Here on is a preposition. Put is the verb and the entire verb is called phrasal verb. So as we have the object, it is a preposition. If there is no object, it is an adverb participle. So you know, my dear children, then what is a phrasal verb composed of? ताले phrasal verb पिला कोउथरु तियारी ना verb plus preposition or participle. Participle means adverb participle is equal to phrasal verb. A simple verb combined with a preposition or an adverb participle makes a phrasal verb. Another very interesting thing, please know, in the phrasal verb, the meaning of the simple verb has no. It has no meaning basically, it has no dictionary meaning. Phrasal verb re pila mula verb ro konsi artha raheni. You generally know, you simply know, put means to keep. तुम्हें पिला माने जानिछ पुट रो अर्थ होची रखिबा किंतु जदरे पुट सहित ऑन प्रीपोजिशन बसी पिला फ्रेजाल वर्ब तयारी कर देला पुट ऑन रो गोटे इडियोमेटिक मीनिंग बा गोटे संपूर्ण नूतन अर्थ परिप्रकाश होची. पुट ऑन मींस वियर जाउ कोच पिंधंती. देखलो पिला पुट रो अर्थ आ रखिबा अर्थ आसुनी. So when a simple verb goes with or is combined with a preposition or a participle, a phrasal verb comes, and the meaning of a phrasal verb is totally different from the verb that is used. जो वर्बटा स्वतंत्र यूज करा जायछि से वर्ब रु फ्रेजाल वर्ब अर्थटा पिला संपूर्ण अलगा से उपजे फ्रेजाल वर्ब. सो व्हाट इज अ फ्रेजाल वर्ब? ए फ्रेजाल वर्ब इज ए वर्ब कंबाइंड विथ ए प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल. व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? इफ देयर इज ऑब्जेक्ट. जदि कर्म थिबो पिला प्रीपोजिशन करबा. कर्म जानिबो केमिति? सिंपली फ्रेजाल वर्ब रे व्हाट लगेई क्वेश्चन पछाड़ दबो. व्हाट डू द पीपल ऑफ आसाम पुट ऑन? आंसर इज ए ट्रेडिशनल अटायर्स, पारंपरिक पोशाक. सो ऑन इज ए प्रीपोजिशन बिकॉज़ अ ट्रेडिशनल अटायर इज द ऑब्जेक्ट. If there is no object, actually the word used after the verb is an adverb participle. जदि object पे कर्म नाही ताले phrasal verb रा verb परे निश्चय गोटे adverb participle पिला माने थिबो. आ गोटे पिला एग्जांपल नंबर 3 मध्ये तुमर देइछि. ठीक पिला भल करी बुझ. सेटा तुमे निजे डिसाइड करिबे पिला प्रीपोजिशन बा participle अछि कि नाही phrasal verb रे. गोटे तुमार पिला देइछि देखो winter sets in. Winter sets in and ... means rest of the sentence. So here sets in is a phrasal verb or PHRV. Here sets is a verb and in is the participle, not preposition, and the total verb is called phrasal verb. Set is a verb, in is a participle, and the entire verb is called phrasal verb.
In is not a preposition, my children. In here is an adverb participle. कौन कहूची? Winter sets in. That means winter begins. Sets in means begins. शीत ऋतु आरंभ हुए and trees start to shed their leaves. एवं गछ गुड़िक से पत्र झाड़ा को आरंभ कर दियंती माने गछ गुड़िकर पत्र झड़ा दिए गछ गुड़िक. सो हियर सेट इन मीन्स बिगिन्स. पिला बिगिन रो प्रेजल भर होची सेट इन. पर्टिकुलरली एटा को क्षेत्र रे बसिबो जानिछ? इन केस ऑफ बिगिनिंग ऑफ सीजन. केवल ऋतु आरंभ करिवा क्षेत्र रे बिकॉज़ विंटर इज ए सीजन. सो कौन से ऋतु आरंभ करिवा क्षेत्र रे पिला मन रखथिबो यू जस्ट रिमेंबर योर फ्रेजल भर इज सेट इन. सेट इज ए वर्ब, इन इज ए पार्टिसिपल. कारण एथिरे ऑब्जेक्ट नाही. If there is object था इन टाको हमें preposition कही थांते बा विभक्ति कही थांते. So set is a verb, in is a participle, the entire verb is a phrasal verb and sets in means begins. Sets in रो अर्थ होची आरंभ हुए. सेमति पिला विभिन्न प्रकार एटी phrasal verb देइची तुमे करि दबो. Young men and women dash their best traditional affair. Page number 60 पिला भल रूपे देखो. Look carefully or notice the various types of sentences given in page number 60 of the question number 3. Young men and women dash their best traditional affair. The answer is put on. Put on माने पिंधंती. The festivals dash in the month of July. July मासरे फेस्टिवल टी आरंभ हुए. अधिकांश पिला तुम ये देखिथिबो बहिर मध्य लिखा है टेक प्लेस. जोटा कि पिला संपूर्ण पिला भूल फ्रेजल भर. एक्चुअली टेक प्लेस गोटे फ्रेजल भर नुहे. आमे सिना कहि दउ टेक प्लेस रो अर्थ होची आरंभ हुए बा अनुष्ठित हुए. किंतु प्लेस इज नॉट ए प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल. रिमेंबर माय चिल्ड्रेन. सो टेक प्लेस जतले कहूछ पिला टेक प्लेस सेडी प्लेस टेक प्लेस एक्चुअली फ्रेजल भर नुहे. टेक इज ए वर्ब बट प्लेस इज नॉट ईदर ए प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल. सेइत भाई ये क्वेश्चन रे हला कि 2 नंबर क्वेश्चन दा पिला जोड़ा 2 नंबर आंसर ता टेक प्लेस हवा कथा. एक्चुअली प्लेस इज नीदर ए प्रीपोजिशन नॉर ए पार्टिसिपल. प्लेस गोटे प्रीपोजिशन नुहे कि पार्टिसिपल नुहे. सेइत भाई अनुष्ठित हवा क्षेत्र रे आ गोटे भलो वर्ड फ्रेजल भर ता बदले पिला बसई दबो. द फेस्टिवल्स कम अप. एक्चुअली इट इज द एप्रोप्रिएट फ्रेजल भर. एइटा होची पिला एप्रोप्रिएट फ्रेजल भर इन प्लेस ऑफ टेक ऑफ. टेक प्लेस बदल रे पिला फ्रेजल भर बसाओ कम अप. कम इज ए वर्ब, ओ डबल एफ इज ए पार्टिसिपल. बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट नथिबारु ओ डबल एफ टाको हमें पार्टिसिपल कहले एवं कम अप टा होची फ्रेजल भर. अंडरस्टैंड? कम अप माने अनुष्ठित हुए. On number 3, on this occasion people discard. What do you mean by discard? Discard means give up, abandon, eliminate, त्याग करंती. The old प्राचीन जगह को बा प्राचीन जिनिस को त्याग करंतु डैश द न्यू ईयर. ता माने नुआ वर्ष को स्वागत करिबा पाई. एटी स्वागत करिबा को फ्रेजल भर रे कुआ जाय ब्रिंग इन. जोटा कि पिला वेलकम रे फ्रेजल भर. वेलकम पिला जानथबो बा ग्रीट स्वागत करिबा तार फ्रेजल भर होची ब्रिंग इन. ब्रिंग इन एटी ब्रिंग टा हला वर्ब, इन टा होची पार्टिसिपल. कारण एटी ऑब्जेक्ट नाही. सो इट इज अ ब्रिंग इन मीन्स वेलकम. देखो मूल भर पिला ब्रिंग आनिबार कोनसी अर्थ रहउनी. प्रेजल भर रे मूल भर रो कोनसी अर्थ रहेनी. नंबर 4, पीपल प्रे द गॉड्स टू डैश एविल. प्रे द गॉड्स नुहे सेठी हवा कथा पीपल प्रे टू द गॉड्स टू डैश द एविल स्पिरिट्स. एविल स्पिरिट्स रो अर्थ होची प्रेतात्मा बा खराब आत्मा बा दुष्टात्मा. तेणु पीपल प्रे टू द गॉड्स माने ईश्वर मान को देवदेवी मान को प्रार्थना करंतु टू डैश द एविल स्पिरिट्स. एविल स्पिरिट्स मान को कोन करिबा पई टू ड्राइव अवे. ड्राइव अवे इज द फ्रेजल भर जोटा कि नॉन फिनिट भर अछि टू इन्फिनिटिव रे. ड्राइव अवे अर्थ होची तड़ी देबा. द सॉन्ग्स हैव बीन डैश थ्रू मेनी जनरेशन. अनेक पीढ़ी देई कि हला कि सॉन्ग्स गुडी को कोन करा जाईची. द सॉन्ग्स हैव बीन हला कि कोन पास डाउन बा हैंडेड डाउन उभय हबो. द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल्स इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग. इफेक्टिव मीन्स अर्थ जानथिबा पिला फलप्रद माध्यम ऑफ प्रिजर्विंग माने प्रोटेक्टिंग सुरक्षा देबार एंड डैश देयर ओरल हिस्ट्री. ओरल रख देबा पिला माने ओरल इज द एडजेक्टिव ऑफ माउथ. माउथ रो एडजेक्टिव होची ओरल. ओरल रो अर्थ पिला जानिथिबा ऑफ माउथ और रिलेटेड टू माउथ जा कहू मौखिक. ओके. प्रिजर्विंग रो अर्थ होची प्रोटेक्टिंग जा कहू पिला संरक्षण करिबा. प्रोटेक्टिंग PROTECTING. अंडरस्टैंड? तेणु बर्तमान कही द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल्स इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड डैश देयर ओरल हिस्ट्री. एवं समान ओरल हिस्ट्री को कौन करिया पाई पासिंग डाउन. मेन क्लाड इन फुल वॉरियर कस्ट्यूम्स. एडी क्लाड रो अर्थ पिला मन रखतिबा ड्रेस्ड पिंधी थिबा. क्लाड मीन्स ड्रेस्ड जोड़ा होची नॉन फिनिट वर्ब. से कहूची विभिन्न प्रकार योद्धा वेश पिंधी थिबा पुरुष माने. कस्ट्यूम्स रो अर्थ मन पिला रखतिबा. कस्ट्यूम्स रो अर्थ होची पोशाक. गोटे स्वतंत्र पोशाक को कहे कस्ट्यूम्स जहाँ कहे ड्रेसेस बा क्लॉथेस पुट ऑन ए स्पेशल ओकेजन. स्वतंत्र ओकेजन रे जो पोशाक गुड़ी पिंधु ताकू पिला माने कहे कस्ट्यूम्स.
तो से कौन अधिकांश पुरुष माने जोटा कि संपूर्ण योद्धा वेशर धारण करिथांती डैश दे आर हंटिंग एंड वारिंग स्किल्स सेमानकर शिकार एवं सेमानकर युद्ध कला को प्रदर्शन करिथांती तेणु प्रदर्शन करने को पिला कह जाए शो ऑफ शो ऑफ अर्थ हूँ निजर कौन सामर्थ्य निजर कौन वीरत्व निजर साहसटा अन्य आगे प्रदर्शित करवा बोले देखा किंतु पिला दुखर सहित कहवाक पड़ुची 60 नंबर ये जो फ्रेजाल वर्बटा तुम ब्राकेट भितर देइची चूज करने चयन करने से देदेची शो ऑफ से पिला भूल एक्चुअली द फ्रेजाल वर्ब इज शो ऑफ SHOW शो OFF कौन सी प्रकार फ्रेजाल वर्ब पिला OF न थाए से प्रीपोजिशन थाउ बा पार्टिसिल थाउ एक्चुअली से यूपी ऑफ हे पारे बा OFF हे पारे इट कुड बी आइदर OFF और यूपी बट इन एनी फ्रेजाल वर्ब यू कैन नेवर फाइंड OF सो शो ऑफ अर्थ होची डिस्प्ले शो ऑफ इज द फ्रेजाल वर्ब ऑफ द वर्ब डिस्प्ले डिस्प्ले माने प्रदर्शन करिथांती नेक्स्ट पीपल ऑफर थैंक्स टू गॉड्स लोक माने हला कि देवदेवी मानू कौन करती धन्यवाद दियंती एंड डैश प्रोटेक्शन एगेंस्ट कैलामिटीज पिला माने कैलामिटीज रो अर्थ जानथिबो CALAMITIES कैलामिटीज रो अर्थ होची डिजास्टर्स जहाँ कह प्राकृतिक विपर्यय जमी बढ़ी मरुड़ी बात्या बन्या इत्यादि भूमिकंप ताकू कह जाए नेचुरल कैलामिटीज बा प्राकृतिक विपर्यय तो से कह लोक मैंने देवदेवी मान को धन्यवाद दियंती एंड डैश प्रोटेक्शन आस्क फॉर प्रोटेक्शन answer to the question number VIII or 8 the answer or the phrasal verb is ask for पिला माने खाली ask रो अर्थ होची पचारिबा but when you use either a preposition or participle for it becomes a phrasal verb एवं ask for रो अर्थ होची beg जाउ को जो मागिबा ईश्वरंग ठारू अनुनय करी बा प्रार्थना करी कौन सी जिनस को तुम जतले मागिबो सेटा को जाय ask for बुझि पारलो ता माने विभिन्न प्रकार विपर्यय विपक्ष रे सुरक्षा मागंती माने सुरक्षा भिक्षा करती क्या देवदेवी मान नंबर 9 दिज सेलिब्रेशन ऑल्सो हेल्प डैश द नेचुरल टैलेंट ऑफ पीपुल एभली प्रकार सेलिब्रेशन बोले उत्सव पालन कौन करे लोक मानकर नेचुरल टैलेंट बोले प्राकृतिक प्रतिभा गुड़ी को है कि विकसित करे प्राकृतिक प्रतिभा को विकसित करने को पिला कह जाए प्राकृतिक प्रतिभा विकसित करने को फ्रेजाल वर्ब एटी पिला दे देइछि सेटा होछि ब्रिंग आउट एटी तो है कि प्रकृति में ब्रिंग आउट पिला दे देइनी हाँ ब्रिंग आउट अच्छी ताले ब्रिंग आउट होची फ्रेजाल वर्ब एटी ब्रिंग आउट रो अर्थ होची पिला जानि थिबा फ्रेजाल वर्ब रे ब्रिंग आउट रो अर्थ होची एक्सपोज जोटा कि बाहर को आनिबा बा प्रकाश करिबा ताको जे ब्रिंग आउट सो ब्रिंग आउट इज द फ्रेजाल वर्ब सो हियर यू जस्ट न्यू some phrasal verbs already given within the brackets but first you have to understand the meanings of the phrasal verbs with their restricted meanings पिला माने phrasal verb मु बारंबार कहूची निजस्व verb रो कोनसी अर्थ न थाए but when you combine a verb जतरे गोटे verb को combine बले जोग करिबा with a preposition or participle then the entire verb becomes a phrasal verb फ्रेजाल वर्ब मूल वर्ब कौन सी अर्थ न थाए तेणु तार आक्षरिक अर्थ बा आक्षरिक अर्थ कौन सी वर्ब पिला न देखिकी टोटाल वर्ब सहित प्रीपोजिशन बा पार्टिसिपल जोग करिकी तुमे फ्रेजाल वर्ब अर्थ को तुमे प्रकाश करिवो बुझलो तापर देखो एथरा क्वेश्चन नंबर 4 को पिला जिबा जोटा कि भारी इंटरेस्टिंग जिंस देइछि क्वेश्चन नंबर 4 पिला माने टिके देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोन दिया हिछि क्वेश्चन नंबर 4 रे गोटा पिला क्वेश्चन आसी टिके मु प्रथमे ए क्वेश्चन ता तो मु प्रथमे लेखिकी देखौछि What is the question number 4? देखो ये देइछि रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल रोंगाली बिहू RONGALI रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल so what is the Odia translation of this sentence पिला माने ए सेंटेंस रो ओडिया ट्रांसलेशन ता कोन हबे टिके पिला बुझ जे रोंगाली बिहू तुमे जानि थो पिला आसाम रो लोक माने उत्तर पूर्व भारत रो आसाम रो लोक माने रोंगाली बिहू कोंगाली बिहू इत्यादि बिहू पर्व पालन करन बिहू होची समान कर गोटे मुख्य पर्व एडी कहूची रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल एडी पिला दीटा जिंस को देखो रोंगाली बिहू इज द सब्जेक्ट एंड इज सेलिब्रेटेड आर द verbs yes or no so what will be the translation रोंगाली बिहू को मिड अप्रैल एटी मिड माने मिडिल रो शॉर्ट फॉर्म अप्रैल रो मध्य भाग रे पालन करा जाय तो कहले पिला रोंगाली बिहू को पालन करा जाउची हियर द सब्जेक्ट सफर्स द एक्शन लाइक ए पेशेंट गोटे रोगी भली पिला रोंगाली बिहूटा गोटे एक्शन एटी एक्शन माने कोन एक्शन ऑफ सेलिब्रेशन हेलो now my children there is a commercial break after the break I am rejoining you till then you just refresh yourselves
Welcome again, my dear children. Welcome again to the G classes. Here, just I stated right from this particular sentence, my dear children. Rongali Bihu is celebrated in mid-April. Mid-April re ba April madhyare. Mid means middle. April madhya bagare Rongali Bihu palana kara jaye. Eti pila mane Rongali Bihu jadio subject achi, but here the subject is not doing anything. Eti subject bere karta kichi karuni. Rather, something is done to the subject. Karta ku kara jauchi. Tar artha hochi Rongali Bihu ku palana kara jauchi. Rongali Bihu palana karuni. So when the subject is acted upon, or the subject is made to do something, जेतले कर्ता को किछि करा जाए बा कर्ता कोनसी प्रकार कार्य सहे, that subject becomes the patient. पिला मान मतलब से subject ता patient हे जाए. Subject किछि करिबा बदले जेतले subject निजे किछि करे, that becomes a patient. And is celebrated are the verbs. So when the subject becomes the patient, the sentence is called passive voice. In the passive voice, my dear children, you remember the subject does not do anything. एक्टिव रे सब्जेक्ट सबले किछि करे, बट पैसिव रे सब्जेक्ट टा को करा जाए बा सब्जेक्ट कोनसी प्रकार कार्य पेशेंट बोले रोगी भली सहे सेहित पई कहवा जाय द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस इज जस्ट लाइक ए पेशेंट. पिला माने तुमे जानि थिबो पेशेंट ऑलवेज सफर्स, पेशेंट सब बेले सहे. सो व्हेन द सब्जेक्ट लाइक ए पेशेंट सफर्स सम एक्शन, पेशेंट भली सब्जेक्ट जेतले कोनसी कार्य सहे, द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव. बट व्हेन एई वाक्य को पिला चाहिए तुम मध्य एक्टिव वॉइस करि परिबो, ताले वर्तमान मते कुह रोंगाली बिहु पिला एप्रिल मध्य रे को माने पालन करंती. एठी कहउची रोंगाली बिहु पालन करा जाय, तो जो माने पालन करंती दैट इज द सब्जेक्ट, दैट मीन्स द पीपल ऑफ आसाम. एंड इफ यू यूज द पीपल ऑफ आसाम एज द सब्जेक्ट, जे आसाम रा लोक माने द पीपल ऑफ आसाम सेलिब्रेट रोंगाली बिहु. सो हियर द पीपल ऑफ आसाम इज द सब्जेक्ट और अ डोयर or agent or doctor. सब्जेक्ट जेतरे पिला किछि करे ताकू कहा जाए सब्जेक्ट बा डोयर बा एजेंट बा डॉक्टर. तो जेतरे सब्जेक्ट becomes a doctor, the sentence is active. When the subject becomes patient, the sentence is passive. एक्टिव रे सब्जेक्ट किछि करे बेली ताकू कहा जाए डॉक्टर बा एक्टर बा एजेंट बा डोयर, ताकू कहउछ कारक जेतु से करे. किंतु जेतरे सब्जेक्ट ता गोटे पेशेंट भली सही निये, द सेंटेंस बिकम्स पैसिव, ताकू कहा जाए कर्मवाच्य. कर्मवाच्य रु कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य रु कर्मवाच्य. एबे पिला माने तुमे देखो आमे कर्तृवाच्य रु केमति कर्मवाच्य करिबा. तुमको तो बहुत किसी कथा है कि एक्टिव पैसिव रे बहुत किसी पिला जानिबार अछि. एक्टिव पैसिव गोटे क्लास रे केबेले हेई परिबो नाही. एटी गोटे सेंटेंस देछि देखो पिला 61 रे, फार्मर्स ग्रो ग्रेप्स इन हैदराबाद. फार्मर्स ग्रो ग्रेप्स GRAPES इन हैदराबाद, HYDERABAD. एटी देखो पिला एक्टिव बेली केमती प्रमाण करिबा. हु ग्रो, ए ग्रो ऊपर पिला प्रश्न पचार दियो, दीटा प्रश्न, हु एंड व्हाट. ग्रो इज द वर्ब इज इक्वल टू प्रेजेंट सिंपल. पिला ए वर्ब टी प्रेजेंट सिंपल रे अछि. नाउ पुट ए क्वेश्चन हु टू द वर्ब. ग्रो वर्ब ऊपर हु लगई प्रश्न पचार, हु ग्रो ग्रेप्स इन हैदराबाद. सो आंसर इज फार्मर. सो फार्मर्स इज द सब्जेक्ट. फिर ग्रो पर व्हाट लगे गोटे प्रश्न पचार, व्हाट डू फार्मर्स ग्रो इन हैदराबाद. हैदराबाद रे कृषक माने कौन फलांती. सो द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज ग्रेप्स, ना अंगूर फलांती. ग्रेप्स माने अंगूर. सो ग्रेप्स इज द ऑब्जेक्ट, फार्मर्स इज द सब्जेक्ट. सो द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस AV, because here the subject does something. सब्जेक्ट ता किछि करूछि, जेतरे कर्ता किछि करे तले किछि किए, that is the object. ता होछि कर्म. And what is the object? That is grapes. To find object you put the question what or whom to the verb. पिला ऑब्जेक्ट पाइबा पई verb रे what बा whom लगे क्वेश्चन पचार दबो. गोटे रहबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे रहबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट जेतरे किछि करिवो that is active. सब्जेक्ट को जेतरे करा जीवो सेटा हो पैसिव. बर्तन एही वाक्य को पिला में पैसिव करि परिबा. सो व्हेन यू चेंज दिस एक्टिव इनटू पैसिव, पिला मन रखतिबो ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट इज चेंज इनटू बाय प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेंबर. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ग्रेप्स. सो दिस ग्रेप्स बिकम द सब्जेक्ट. ग्रेप्स. ताले ग्रेप्स आर प्लूरल and the tense is grow present simple. Present simple plural means plural verb are should be used. जेतेबेले पिला प्रेजेंट सिंपल देखिबो तार तीनोटी मुख्य विभर कथा चिंता करिवो. आम इज आर. तो बर्तमान ग्रोटा प्रेजेंट सिंपल थिबारु एवं ग्रेप्सटा प्लूरल थिबारु आर.
पिला जेकोसी तुम पैसिव कर मेन वर्बटा को सब पास्ट पार्टिसिपल करूथिबो थर्ड फॉर्म ऑफ द घर ताले ग्रो रो थर्ड फॉर्म होची ग्रोन सो ग्रेप्स आर ग्रोन इन हैदराबाद फुल स्टॉप एटी पिला प्रश्न उठुची जे आमे बाय फार्मर्स करबा उचित की ताकू कह जे बाय प्लस फ्रेज बा बाय प्लस एजेंट फॉर्म जे कृषक मानक द्वारा साधारणतः पिला माने अंगुर माने कृषक माने ही फळांती जेतेबेले तुम्हें कर्ताटा जी कार्य करे सी हूँ कर्ता जी जहाँ करे बा कर्ता जहाँ करे जहाँ तुम्हें सब्जेक्ट कहूछ से कर्ताटा को तुम्हें जदि जानी इफ यू नोन द सब्जेक्ट और इफ यू नोन द डॉक्टर इफ यू नोन द एक्टर इफ यू नोन द डोयर तुम्हें जदि कर्तार ना जानी पिला से बाय प्लस एजेंट फॉर्म बा बाय प्लस फ्रेज बसैबार कौन आवश्यकता ना सिंपली करदेव ग्रेप्स आर ग्रोन इन हैदराबाद बुझिपार कि नहीं देन इट बिकम्स पैसिव ओके खाली गोटे कथा पिला जानिब योर ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टटा जेतले सब्जेक्ट हो जाए देन द सेंटेंस बिकम्स पैसिव एवं एक्टिव रे मन रखिबा सब्जेक्ट किछि करे पैसिव रो सब्जेक्ट को पेशेंट भली करा जाए नंबर 2 एट दापर देछि देखो पिला पोचर्स POACHR पोचर्स रो अर्थ होछि इलीगल हंटर्स जा को जो हला कि बेआईन शिकारी जो शिकारी मान को शिकार करबा पई दे आर नॉट परमिटेड बाय लॉ दे आर नॉट परमिटेड बाय द गवर्नमेंट सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त नुहंती से कहुए पोचर्स पोचर्स अर्थ हूँ इलीगल हंटर्स बेआईन शिकारी पोचर्स किल अर्थ हूँ मारी दियंती ए लॉट ऑफ पोचर्स किल ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एवरी ईयर ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एवरी ईयर अंडरस्टैंड सो दिस इज द एक्टिव पिला केमिति एक्टिव जान लो मु तुम सबले कहि किल वर्ब रे दीटा प्रश्न पचारिबो हु देन हुम और व्हाट हुम बा व्हाट जहार उत्तर आसुथिबो ताले हु किल द आंसर इज पोचर सो पोचर इज द सब्जेक्ट देन हला कि हु और व्हाट डू द पोचर्स किल पोचर्स माने काहा को मार दियंती ना ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट इज द ऑब्जेक्ट ताले बाकी पिला देखो रहिला पैटर्न कोन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सो द सेंटेंस इज एक्टिव एक्टिव करबा पई दुईटा जिंस पिला जानिबो एक रे सब्जेक्ट किछि करूथिबो एवं से किछिटा होछि ऑब्जेक्ट जाउ कहजो कर्म ओके सो पोचर्स किल ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तापर पिला या को पैसिव करबा पैसिव कले देखो ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ता ऑब्जेक्ट थिला ताकू मुळु को नै आसो सब्जेक्ट ए लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओके तापर किल ता देखो पिला प्रेजेंट सिंपल रे अछि PRS प्रेजेंट सिंपल रो बी वर्ब कोन व्हाट आर द बी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल आम इज आर बर्तन देखो वाइल्ड एनिमल्स ता पिला प्लूरल रे अछि तो ऑब्वियसली तमर आर बसिबो तापर मु सबले कहि छी मेन वर्ब ता को पास्ट पार्टिसिपल करिवो किल रो पास्ट पार्टिसिपल कोन किल्ड देन एवरी ईयर बुझला एटी पिला बाय प्लस एजेंट फॉर्म बाय द पोचर्स करबा दरकार नै कारण साधारणतः पोचर्स माने ही हला कि कोन करंती प्रति वर्ष जंगली जानवर मान को मारी दियंती तो जोटा सब्जेक्टटा तुमे अननोन नोन टू यू क्लियरली नोन टू यू स्पष्ट भाव में तुमको जना सेठी पिला बाय प्लस सब्जेक्ट करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं से बही लिखी देखो विदाउट बाय प्लस फ्रेज जे बाय प्लस वाक्यांश न बसई कि तुम पैसिव गुड़िक कर नंबर 3 पीपुल मेक पेपर फ्रॉम पल्प हूँ इज ए लिक्विड सब्सटेंस पल्प हूँ गोटे तरल पदार्थ पीपुल मेक पेपर फ्रॉम पल्प सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज पेपर सो द आंसर इज पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प बाय प्लस फ्रेज बाय पीपुल बसवा दरकार नहीं समवन ब्रोक द विंडो एटी गोटा पिला नुआ टेंस अच्छी देख कई जने झरकाटी को भांगी देला तुम टेंस जो अनुसार पिला बदल पैसिव वॉइस रो बी वर्बटा से अनुसार बदल दब एटी देख आईवीटा कौन देछि समवन ब्रोक द विंडो कई जने झरकाटी भांगी देला समवन ब्रोक द विंडो मु सब पिला कहि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केमती जानिबो सो ब्रोक इज ए वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द पास्ट सिंपल जहाँ को ओडिया रे कहउछ भांगी देला आरी ऊपर दीटा प्रश्न पचार हु एंड व्हाट यस और नो सो हु ब्रोक द विंडो आंसर इज समवन सो समवन इज द सब्जेक्ट देन व्हाट डिड समवन ब्रेक आंसर इज द विंडो इज द ऑब्जेक्ट सो द सेंटेंस इज एक्टिव बिकॉज द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग सो द सेंटेंस इज एक्टिव नाउ चेंज इनटू पैसिव सो व्हेन यू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव the window becomes the subject so here the object becomes the subject the window is the object now it becomes the subject तापर पिला देखिबो broke is in the past simple tense so what are the two be verbs or the past simple पिला माने हला कि past simple रो दुईटी be verb होची was और were was होची सिंगुलर एवं were होची प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे जानि थिबो तनु विंडो टा सिंगुलर अछि तनु was बसई दबो
तापर मु तुमको कही मेन भरटा सब पास्ट पार्टिसिपल करिवो सो ब्रोक रो पास्ट पार्टिसिपल होची ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन सो ब्रोकन इज द पीपी और द फॉर्म 3 सो द विंडो वाज ब्रोकन दैट्स करेक्ट बाय समवन पिला बसैबनी काई कारण समवन रो अर्थ होची यू डू नॉट नो द पर्टिकुलर पर्सन हु ब्रोक द विंडो तेणु बाय समवन बसैबा दरकार नाही सेमते आउडा अछि देखो वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स हियर द एल्डर्स इज द ऑब्जेक्ट वी इज द सब्जेक्ट सो द सेंटेंस इज एक्टिव इफ देयर इज ऑब्जेक्ट डेफिनेटली द सेंटेंस इज एक्टिव वाक्य पिला जोटी ऑब्जेक्ट आसीबो तुमे जानिबो वाक्यटा एक्टिव रे बोले कर्तृवाच्य को आसीगला कर्तृवाच्य सही कुआ जाए वाच्य माने वाक्य कर्तृ माने कर्ता प्रधान माने कर्ता किछि करे से किछिटा होउची दैट इज ऑब्जेक्ट से किछि मध्य रिसीवर ताकू मध्य रिसीवर ऑफ द एक्शन कुआ जाए कारण एक्शन को से रिसीव करूची ग्रहण करूची तलु ग्रहिता एटी कहि देखो वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स पिला एटी देखो गोटे मोडाल बसिची तापर तुमे देखिबो पिला जोटी तुमे देखिबो एक्टिव रे मोडाल थिबो मोडाल होची गोटे ऑक्सिलरी वर्ब से मोडालटा कोउटी शुड तन मन रखतिबो एवी पीवी इफ यू फाइंड एनी मोडाल्स तमर पिला इंग्लिश रे 13 टी मोडाल्स अछि कैन कुड मे माइट शाल शुड वुड वुड किंतु इंग्लिश पेयर मोडाल जोड़ा अछि विल वुड शाल शुड विल कैन कुड मे माइट आउ मस्ट आउ अटू एई बोली प्रकार मोडाल जोडी एक्टिव रे थिबो पैसिव रे कोन करिवो पिला जानछो सेई मोडाल्स पाखरे बी बसई दबो प्लस मेन वर्ब को सेमती सब बेले पीपी कर दबो आंसर हे गला तडो एटी ऑब्जेक्ट पिला किए थिला द एल्डर्स शुड हला मोडाल सो आंसर शुड बी रेस्पेक्टेड दैट मीन्स द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड आउ बाय प्लस फ्रेज बाय अस बसईबार कोनसी दरकार नाही somebody stole her purse stole on the past simple रे अछि steal रो past simple अछि stole चोरी करनेला so the answer is her purse was stolen another question the police have arrested the miscreant what in by miscreant रो अर्थ होछि क्रिमिनल जाकू कहछ दुर्वृत्त बा अपराधी पुलिस अपराधी को गिरफ्त करी छी तार अर्थ होछि पैसिव रे अपराधी को गिरफ्त करा जाई छी by the police करिवार कोनसी आवश्यकता नाही so the answer should be the miscreant has been arrested जोटी पिला प्रेजेंट परफेक्ट थिबा हैज प्लस पीपी बा पास्ट परफेक्ट थिबा हार्ड प्लस पीपी मझिरे बी रो पास्ट पार्टिसिपल बिन बसई दबा जंदी मोडाल थिले बी हैज हार्ड थिले बिन आईएनजी थिले बीइंग एवं प्रेजेंट सिंपल थिले am is are पास्ट सिंपल थिले was were आ प्रत्येक मेन वर्बटा को पिला पास्ट पार्टिसिपल कर दबा पैसिव वॉइस रे सो एडी आंसर हला द मिसक्रींट हैज बीन अरेस्टेड तापर पिला देखो भारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देछि क्वेश्चन नंबर 8 रे पेज नंबर 61 माय फ्रेंड हैज ईटन अप ऑल द ग्रेप्स मोर संग समस्त प्रकार ग्रेप्स खाई देछि ए पिला एक्चुअली क्वेश्चन टिके भूल अछि जोट पिला ईटन अप लागिबो सेठी ऑल शब्दटा लागिबनी जोटा कि हला कि ऑलटा गोटे एडजेक्टिव एठी पिला केबेले ऑल बसैबनी कारण ईटन अप रो अर्थ ही होछि ऑल मोर संग सब प्रकार ग्रेप जोटी यूपी अप बसिबो प्रीपोजिशन से अप मीन्स ऑल अप रो अर्थ ही होछि ऑल एडवर्ब प्रीपोजिशन तेनु अप जोडी बसिबो सेठी ऑल बसैबनी हेलो 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 हां सर नमस्कार नमस्कार वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम माय नेम इज जयदेव माझी हां जयदेव माझी यू आर फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ आवर स्टेट सर तुमे कोडू कहउछ रे बाबा नवरंगपुर जिला सर हां जिला नवरंगपुर को रे बा गाम बिजुड़ा हेलो हेलो हाँ को अरे क्वेश्चन को है क्वेश्चन को नवरंगपुर जिला सर हाँ तुमरा कौन क्वेश्चन को तुमरा प्रश्नटा कौन अछि मो साथ शेयर करो हेलो हेलो अरे तुमरा क्वेश्चन टा कौन को ट्री ऑफ द रियर to saving please of course tree तुमे कोन एते वाक्य लंबा वाक्य कहलै बा मु तमर वाक्यटा भी किछि भल रूपे सुनी पारुनी वाक्यटा को क्लियर लिखुओ ओके सर हेलो देखो एडी पिला पिला तांकर क्वेश्चन टा को हला कि भल रूपे स्पष्ट सुबुनी तापर क्वेश्चन टा प्रकृति रे हमर विषय वस्तु सहित मध्य जड़ित नुहे क्वेश्चन टा को मु क्लियरली सुनिले संगे संगे बुझाई देई थांती देखो एठी माय फ्रेंड हैज ईटन अप ऑल द ग्रेप्स तेणु एटी पैसिव वॉइस कौन हम ना ऑल द ग्रेप्स हैव बीन एटी पिला ऑल के भेले बसैबनी प्रेजेंट वर्ब रे जोडी यूपी ऑफ प्रीपोजिशन रहिबो ताहा ऑल को ही बुझाए तेणु एटी आंसर करिवो द ग्रेप्स हैव बीन ईटन माय फ्रेंड करिवार दरकार नै सेट पई से लिखिछि ब्रैकेट भितरे आई वांट टू कीप इट ए सीक्रेट अच्छा मु काहा को सीक्रेट रखिबा को चाहूची ताहा माने जिए ग्रेप्स गुडी को खाई देइछि माने माय फ्रेंड
तेणु माय फ्रेंड बोले बाई प्लस फ्रेज को पिला बसाइबनी केवल एतिकी करिवो द ग्रेप्स हैव बीन इटिन अप ऑल पे केबेले यूज करिवनी द क्वेश्चन टा भूल अछि ओनली द ग्रेप्स हैव बीन इटिन अप जोडी यूपी अप बसिबो सेटा ऑब्वियसली पिला ऑल को ही बुझेइबो सो द ग्रेप्स हैव बीन इटिन अप अर्थ होची अंगूर गुडी को खिया जाईछि ओके अनदर कलर ओके हेलो यस सर नमस्कार नमस्कार सर मोर गोटे जो सब्जेक्ट टिके भिन्न क्वेश्चन थला हां सब्जेक्ट रु भिन्न गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहू पचार ताले मैथमेटिक्स इज नेसेसरी हां फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश इज नेसेसरी टू मैथमेटिक्स कहला यूज नो लेस दैन एंड रीराइट हां मैथमेटिक्स कहो जी इज नो लेस दैन एंड देन का भैया अरे मैथमेटिक्स इज नो लेस नेसेसरी देन कौन इंग्लिश ना साइंस नो 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 आउ अरे तुम्हें स्पष्ट भाव रे कुआ मु तुम क्वेश्चन टा आधा सुनी पारली मैथमेटिक्स इज नो लेस नेसेसरी मैथमेटिक्स इज नेसेसरी फुल स्टॉप ला हां तापर आउडा इंग्लिश इज नेसेसरी टू हां तापर कोन कहै छी जॉइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग नो लेस देन तो नहीं 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 यूज नो लेस देन एंड रीराइट हाँ से कथा से कहूँ तुमको तुमर पा क्वेश्चन सरीबा पूर्व मु आंसर खोजी सारे तार अर्थ तुम्हें कौन कौन मैथमेटिक्स इज नेसेसरी मैथमेटिक्स आम आवश्यक बोले दरकारी तापर तुम्हें कौच इंग्लिश इज नेसेसरी टू इंग्लिश आम टूर अर्थ हूँ एडवर्ब दरकारी ताकू आम नो लेस दैन करवा नो लेस डट 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 दैन पिला ताले आंसर हम मैथमेटिक्स इज नो लेस मैथमेटिक्स इज नो लेस नेसेसरी दैन इंग्लिश आंसर मैथमेटिक्स इज नो लेस नेसेसरी दैन इंग्लिश ओके तार अर्थ कौन जान तार अर्थ हूँ मैथमेटिक्स इज आज नेसेसरी आज इंग्लिश ओके मैथमेटिक्स आम जिते दरकार इंग्लिश भी सेते दरकार एक अर्थ हो मैथमेटिक्स इज आज नेसेसरी आज इंग्लिश तार अर्थ हूँ मैथमेटिक्स इज नो लेस नेसेसरी दैन इंग्लिश मैथमेटिक्स इंग्राजी ठारू कम आवश्यक नुहे तार अर्थ हूँ मैथमेटिक्स जिते आवश्यक इंग्राजी सेते आवश्यक तेणु नो लेस को उठाई पिला आज बसईदेव सेकेंड दैन को उठाई आज बसईदेव और सेकेंड जो रहा आज नेसेसरी आज इंग्लिश युवा तुम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री कारण ये आम कंपेयर करूँ मैथमेटिक्स सहित क्या इंग्लिश सहित तेणु एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री बा कंपेरिजन आउ ओके तापर पिला देख नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 टा पिला देख बढ़िया जिनस देछि तुमको बुझे देउछि से कौन कही द नॉर्थ ईस्ट इंडिया द NE इंडिया द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग 7 states कंप्राइजिंग 8 states द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग 8 states डॉट 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 पिला तुम्हें भल रूपे देखनी द उत्तर पूर्व भारत 8 राज्य को लेकिन गठित उत्तर पूर्व भारत होउछि इज ए प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर एटी भी क्वेश्चन पिला भूल अछि डाइवर्स पाखे डाइवर्स होउछि डिफरेंट बा वेरियस विभिन्न तेणु विभिन्न जेहेतु एक रु अधिक तेणु कल्चर प्लूराल से लिखिदेव कल्चर्स ए क्वेश्चन टा भूल अछि केवल ग्रामेटिकल एरर सिंगुलर प्लूराल रे द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग 8 स्टेट्स पिला एटी टिके देख कंप्राइजिंग 8 स्टेट्स टाकू गुरुत्व दियो एक्चुअली आमर जानिबार अछि एई पर्टिकुलर अंश कंप्राइजिंग टा कोन पिला कंप्राइजिंग इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्राइजिंग होउछि एक असमापिका क्रिया एंडिंग विथ आईएनजी जोडा आईएनजी रे सरीछि मु तुमको ऑलरेडी कहि दी पिला प्रीवियस क्लास रे द वर्ब दैट शोज टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब बट द वर्ब दैट हैज फॉर्म्स इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्राइजिंग रे देखो पिला आईएनजी फॉर्म बसिछि सेति पई कंप्राइजिंग होउछि गोटे नॉन फाइनाइट वर्ब बा असमापिका क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब comprising 8 states so this particular comprising 8 states this is comprising is a non finite verb तेनु करी पिला ए टोटल स्ट्रक्चर टा होउछि नॉन फिनिट क्लॉज तले कोउटा क्लॉज र अर्थ होउछि पिला जानथिबो वाक्य खंड बा खंड वाक्य तले को वाक्यटा को हम नॉन फिनिट क्लॉज कहबा ना द क्लॉज दैट बिगिन्स विथ द नॉन फिनिट वर्ब जो क्लॉज बा खंड वाक्य नॉन फिनिट वर्ब आरंभ ताकू कहै जे नॉन फिनिट क्लॉज नॉन फिनिट खंडवाक्य बा असमापिका क्रिया खंडवाक्य एटी तुम अनदर कलर ओके यू आर मोस्ट वेलकम टू द जी डायस हेलो माय डियर चिल्ड्रन हेलो माय डियर चाइल्ड हेलो माय डियर बॉय और द गर्ल हेलो 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 हेलो
Hello, sir. हाँ हेलो So, what is called compound sentence? हाँ कंपाउंड सेंटेंस अच्छा तुम विषय वस्तु टी अलग हो गल ओके कंपाउंड सेंटेंस हूँ कौन कहल वन मेन क्लॉज और वन प्रिंसिपल क्लॉज combined with one or more coordinating clauses combined with one or more coordinating clauses is called compound sentence compound रो अर्थ पिला यौगिक यौगिक माने जोग युक्त एक से यौगिक जमती कहूँ वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तेणु कंपाउंड सेंटेंस जहाँ तुम यौगिक वाक्य कहूच तार प्रथम क्लजटा थी मेन क्लज बा प्रिंसिपल क्लज जहाँ कह मुख्य खंड वाक्य बा प्रधान खंड वाक्य ता सहित एक बा एकाधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लजेस जहाँ कह संयोजक खंड वाक्य मिसई देला पर कंपाउंड हो आउ कौन से पर्टिकुलारली तुमको कोऑर्डिनेटर गुड़िक मन रखिदेव कहीं कोऑर्डिनेटर जोटा आरंभ हम से कोऑर्डिनेटिंग क्लज से कोऑर्डिनेटिंग क्लज सहित मेन क्लजटा मिसई देले वाक्यटा हो कंपाउंड आउ कौन केमिति ही इज माय फादर से मोर बापा अटंती एंड माई वेल विशर एवं मोर शुभेच्छु अटंती एंड माई वेल विशर टा कोऑर्डिनेटिंग क्लज जोटा कि कोऑर्डिनेटर एंड रु आरंभ है ही इज माई फादर टा मेन क्लज मिसीगला कंपाउंड ओके द मैन इज पुअर बट ही इज हैप्पी द मैन इज पुअर टा मेन क्लज बट ही इज हैप्पी टा कोऑर्डिनेटिंग क्लज जोटा कि कोऑर्डिनेटर बट रु आरंभ है तेणु वाक्यटा कंपाउंड तो कंपाउंड रे पिला खाली स्पेशल मन रखिबो कोऑर्डिनेटिंग क्लज जोटा कोऑर्डिनेटर रु आरंभ हुए सेमती कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटर रु आरंभ है सबऑर्डिनेटिंग क्लज आउ कौन ओके एटी कही देख कंप्राइजिंग 8 स्टेट्स एटी कंप्राइजिंग अर्थ पिला कहीदेली नॉन फिनिट वर्ब तेणु नॉन फिनिट वर्ब जो क्लजटा आरंभ हम जो खंड वाक्यटा सेटा हम नॉन फिनिट क्लज तेणु ये नॉन फिनिट क्लज है कंप्राइजिंग 8 स्टेट्स ओके सेमती कही ब्लेस्ड विथ द लॉस ग्रीन एंड माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र ता माने शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र एवं सबुजिमारे आशीर्वाद प्राप्त तेणु ब्लेस्ड टा पिला नॉन फिनिट वर्ब जोटा कि पार्टिसिपल नॉन फिनिट वर्ब ईडी रे सरी तो ब्लेस्ड विथ लॉस ग्रीनर एंड माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र यही टोटाल क्लज बोले खंड वाक्यटा हूँ नॉन फिनिट क्लज कारण ये नॉन फिनिट वर्ब ब्लेस्ड रु आरंभ होइछि पिला सेही टाइप रो देखो एठी तमरा क्वेश्चन सब अछि कहि नॉन फिनिट क्लज गुडी को बाहर करो नॉन फिनिट क्लज पिला बाहर करबा पई तुमे कोन करबा जानिछो आगे नॉन फिनिट वर्ब ऊपर गुरुत्व दबो नॉन फिनिट वर्ब ऊपर गुरुत्व दबो असमापिका क्रिया नॉन फिनिट वर्ब जहाँ असमापिका क्रिया सेटा जदि आईएनजी रु आरंभ होइदिबो सेटा जदि पिला ईडी बा हाइफेन ईएन बा हाइफेन एन बा हाइफेन टी रु शेष होइदिबो साधारणतः यही सब नॉन फिनिट वर्ब रु जो क्लजटा आरंभ हुए सेया कुआ जाय नॉन फिनिट क्लज जहाँ कुआ जाय असमापिका क्रिया खंड वाक्य कारण से खंड वाक्यटा एई टाइप रो असमापिका क्रिया रु आरंभ होइताय जेमति एक नंबर पिला देखो पेज नंबर 62 रे कहिछि द पेपा इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ए बफालो हॉर्न एटी पिला मेडटा हूँ गोटे नॉन फिनिट वर्ब इजटा है गोटे फाइनाइट वर्ब कारण इज टेंस अच्छी एटी मेड कौन टेंस ना तेणु मेडटा है नॉन फाइनाइट वर्ब जहाँ कह तैयारी तेणु मेड ऑफ ए बुफालो हॉर्नटा होगा नॉन फिनिट क्लज ओके लेइंग फार्दर नॉर्थ इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द हिमालयज लेइंग रु पूरा हिमालयस पर्यंत है नॉन फिनिट क्लज जोटा कि लेइंग हे देखो आईएनजी रु आरंभ होइछि तेणु ये लाइंग नॉन फिनिट आरंभ होइतिबारु एटा हला नॉन फिनिट क्लज ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन देयर होम्स एंड डिस्कार्ड द ओल्ड टू ब्रिंग इन द न्यू वर्ल्ड तेणु वर्तमान पिला कोउटा होइछि टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर एटा देखो पिला टू इन्फिनिटिव रु आरंभ होइछि टू इन्फिनिटिव साधारणतः नॉन फिनिट वर्ब ए तीनोटी आरंभ होइदिबो गोटा हला आईएनजी गोटा हला ईडी बा ईएन बा एन बा टी रे सरुथिबा पास्ट पार्टिसिपल आ गोटा टू रु आरंभ होउथिबा ए नॉन फिनिट यही थ्रू जो क्लजटा आरंभ हम टोटाल हम नॉन फिनिट क्लज एटी नॉन फिनिट क्लजटा कोटा पिला देखो टू रु आरंभ होइछि टू ब्रिंग तेणु टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर टा नॉन फिनिट क्लज आ गोटा देखो पिला द विलेजर्स क्लाइंब द नियरेस्ट हिल टॉप्स फॉर दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज टू ए हायर प्लेन इन दिस लाइफ वर्तमान पिला देख सी कौन जे लोक मैंने निकटवर्ती हिल टॉप्स माने पहाड़ शीर्ष उपर को उठी जाती कारण से माने विश्वास करती यहीटा से जीवन रे आहुरी विकास रे साहाय्य करिवे आहुरी प्रगति बोले उन्नति रे आगु को नब बोले साहाय्य करिवो एटी पिला मार्क कर को नॉन फिनिट वर्ब अछि जो क्लजटा नॉन फिनिट रु आरंभ मु बारंबार कहूची दैट इज द नॉन फिनिट क्लज क्लज रो अर्थ होची खंड वाक्य एटी नॉन फिनिट वर्बटा होची पिला देखो राइज एटा कुआ जाय उडा बेयर फॉर्म देखो राइज पूर्व पिला टू बसिनी राइज रे आईएनजी बस ओके हेलो हेलो हाँ थैंक्स वर्तमान पिला नॉन फिनिट वर्बटा किए अछि ना राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ राइज टा नॉन फिनिट वर्ब तेणु राइज टू हायर प्लेन टा नॉन फिनिट क्लज तापर नॉन फिनिट क्लज पिला अछि सेलिब्रेटेड इन मिजोराम एवं सेलिब्रेटेड होछि नॉन फिनिट वर्ब जा को पालित हेउथिबा
अनदर नॉन फिनिट भर अच्छी वियरिंग तेणु से नॉन फिनिट क्लज बाहर करदेव वियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर लास्ट हूँ सेलिब्रेटेड इन नवेम्बर टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क ये टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क हूँ नॉन फिनिट भर लास्ट खाली खाली टे पिला गोटे कथा कहीदे तुम आज जहाँ सरीज गोटा हूँ मेड फ्रॉम लास्ट क्लास अन्य विषय पढ़ेगा मेड फ्रॉम आउ गोटा हूँ पिला मेड ऑफ ओके मेड फ्रॉम टा कौन सी जिनस जो तैयारी हम मन रख ओरिजिनल इनग्रेडिएंट मूल उपादान टा पिला डिसापियर हो जाइथिबो डिसापियर अर्थ हूँ अदृश्य हो जाइथिबो तैयारी जिनिस रे आउ जेते बेले पिला मेड ऑफ करिवो मन रखथिबो ओरिजिनल इनग्रेडिएंट अपियर्ड ओरिजिनल इनग्रेडिएंट अर्थ मन रखथिबो उत्पादन सामग्री जाकू कंचामाल कहउछ हेबा सीन बा फाउंड जो जिनस देखा पिला माने तैयारी जिनस जदि मूल जिनसटा देखा होतिबो सेटा करिवो मेड ऑफ जदि तैयारी जिनस मूल द्रव्यटा अदृश्य हो जाइथिबो बा लुचि जाइथिबो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग तैयारी प्रक्रिया रे बा तैयारीकरण प्रक्रिया रे तो सेट करिवो मेड फ्रॉम ए देखो पिला मो हाथर अंगुली रे देखो गोटे मुदी अछि ए मुदी रे देखो तुमे गोल्ड टाकू पूरा स्पष्ट भाव रे देखि पाउछ तणु करिवो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड किंतु झीटी गोटे फ्रॉक पिंधि फ्रॉकटा कटन रे तैयारी तुला रे किंतु फ्रॉक रे आमे पिला कटनटा देखि पारुनु किंतु कटन रे तैयारी सेठी करिवो द गर्ल्स फ्रॉक इज मेड फ्रॉम कटन जेमति चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क कारण मिल्क रे चीज आउ देखा जाएनी बुझि पारलो तेणु मूल जिनस जोडी गायब हे जीवो सेठी करिवो फ्रॉम मूल जिनस जदि स्पष्ट रूपे देखा होतिबो सेठी करिवो पिला ऑफ सो दिस इज ऑल for our today's class. In the next class, I will begin a new topic for your better understanding. Till then, you just give me farewell or give me a goodbye. And in the next class, I will rejoin you, my dear children, from all over Odisha, from across. Till then, goodbye. Just have a good day and enjoy your lives freshly. Thanks a lot.